Assalamu alaikum students. How are you all? I hope that all of you are very fine by Allah Almighty's will. Today we are going to start our lesson number 4. But before starting it, you will have to take out your textbook and put that in front of you so it will help you to understand the explanation more clearly. On page number 38, there is Unit 3, and the title of Unit 3 is Input and Output Devices, and this is your lesson number 4, but chapter number 3. First of all, I'll give you the introduction of this chapter. What are input and output devices? A computer cannot work without input and output devices. Input and output devices are also known as peripheral devices. Firstly, I'll tell you about an input device. What is an input device? An input device does exactly what its name suggests. It means कि input device का क्या function होता है वो उसके name में ही छुपा हुआ है. Input. Input means that with the help of an input device, you can enter data and commands into the computer. In simple words, इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए हम कंप्यूटर को डिफरेंट कमांड्स और उसमें डिफरेंट डेटा और इन्फॉर्मेशन एडअप कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं और एंटर कर सकते हैं. जो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं जो यूज़ होती हैं वो कीबोर्ड एंड माउस है. कीबोर्ड एंड माउस के बारे में सुन के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कीबोर्ड एंड माउस इनपुट डिवाइसेस क्यों हैं. Because with the help of keyboard and mouse, we enter the data and commands to the computer. अगर माउस और कीबोर्ड ना हो तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पाएंगे, राइट? तो कीबोर्ड एंड माउस के थ्रू और इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर को डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं. The most commonly used input devices are joystick, trackball, light pen, scanners, etc. What is an output device? An output device is a device which gives us results. Those results which are formed by the result of input. इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि हमें रिजल्ट्स देती हैं या हमें आउटपुट दिखाती हैं. इनपुट डिवाइस के ज़रिए आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए, आपने कंप्यूटर में डेटा एंटर किया. अब उस डेटा के नतीजे में वो जो रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड करेगा वो रिज़ल्ट आपको आउटपुट डिवाइसेस शो करती हैं. ओके, जैसे कि मॉनिटर पे आपका रिज़ल्ट शो होता है. जैसे कि आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं, आपने गूगल पे टाइप किया कीबोर्ड के थ्रू, एंड जब गूगल ने उस पर सर्च करके जो रिज़ल्ट आपके मॉनिटर पे शो हुआ वो क्या हुआ, उसका रिज़ल्ट हुआ. तो इनपुट डिवाइसेस हमें रिज़ल्ट शो करती हैं. एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स. मॉनिटर पे वो रिज़ल्ट परमानेंट नहीं होता क्योंकि अगर आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देते हैं तो वो रिज़ल्ट लॉस्ट हो जाता है. बट with the help of printers and plotters, you can print your result on the paper. So this was the brief introduction of input and output devices. Now further we will study these devices in detail. The next topic is input devices. I gave you the brief introduction of input devices before. Input devices can enter the information in the computer. That information can be in alphabets, numbers or other symbols.
मतलब जो भी डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसमें कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं और कोई भी सिंबल्स हो सकते हैं, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट इनपुट डिवाइस इज़ कीबोर्ड। नाउ व्हाट इज़ अ कीबोर्ड? हैव यू एवर सीन अ कीबोर्ड? आई थिंक यू डिड। आप सब ने अपनी लाइफ में कीबोर्ड तो ज़रूर देखा होगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कीज़ होते हैं, अल्फ़ाबेटिक कीज़, न्यूमेरिक कीज़, फंक्शनल कीज़, बहुत सारे कीज़ होते हैं एंड वो एक मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस है। अ कीबोर्ड इज़ काइंड ऑफ अ टाइपराइटर। टाइपराइटर भी कीबोर्ड की तरह ही होता है। Okay, so keyboard, the standard arrangement of the alphabetic keys is known as the QWERTY. It means that keyboard में जो alphabetic arrangement होता है वो काफ़ी change होता है और shuffled होता है. Like the alphabets start from Q W E R T Y, which is QWERTY. और ये कीबोर्ड का specific alphabetic arrangement होता है, इसको QWERTY कहा जाता है. If you can click or hit any key on the keyboard, it will be shown on monitor. आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करेंगे तो वो आपको मॉनिटर पे शो होगा. और कीबोर्ड के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और उसमें बहुत सारे कीज़ होते हैं. On page number 39, there is an image of keyboard and there are some keys of keyboard which are explained here. Let's move towards the different keys of keyboard. Number 1 is alphanumeric keypad. Alphanumeric keypad कौन सा कीपैड होता है और उसमें कौन कौन सी कीज़ आती हैं? Let's study. Alphanumeric keypad में कुछ कीज़ ऐसे होते हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लाइक बैकस्पेस. बैकस्पेस का फंक्शन होता है टू डिलीट अ कैरेक्टर. अगर आपसे कोई कैरेक्टर गलत टाइप हो गया है तो आप बैकस्पेस के थ्रू से डिलीट कर सकते हैं. Caps lock, the function of caps lock is to make the alphabets capital. अगर आप कुछ कैपिटल लेटर्स में टाइप करना चाह रहे हैं तो आप कैप्स लॉक पे क्लिक करेंगे. Number 3, enter key. What is the function of enter key? Enter key is used to issue a command to the computer. जैसे अगर आपकी राइटिंग कंप्लीट हो चुकी है और आप उसे कंप्यूटर पे एंटर करना चाहते हैं तो आप उसे एंटर करेंगे. एंड अगर आप एक लाइन से दूसरे लाइन पर आना चाहते हैं तो आप एंटर प्रेस करेंगे तो you will move to the next line. The next keypad is numeric keypad. The numeric keypad has number keys. Number keys like 0 to 9 digits. If you want to activate those numbers, you will have to click the key which is num lock. आप num lock पे क्लिक करेंगे या आप num lock को प्रेस करेंगे तो वो नंबर्स काम करेंगे. अगर आपने उसको डीएक्टिवेट कर दिया num lock को तो न्यूमेरिक कीपैड दूसरे फंक्शंस कंट्रोल करने में काम आता है. The next keypad is function keys. Function keys कौन सी होती हैं? Function keys are present at the top of the keyboard in the horizontal way. F1, F2, F3, F4 हर की का डिफरेंट फंक्शन होता है और ये F12 तक होती हैं एंड दे कैन गिव कंप्यूटर डिफरेंट कमांड्स. हर की के डिफरेंट कमांड्स होते हैं. आप हर की को यूज़ करके कंप्यूटर में डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट कमांड्स एक्टिवेट कर सकते हैं. On page number 40, the other keypads are mentioned. स्क्रीन नेविगेशन और कर्सर मूवमेंट कीज़. ये वो कीज़ होती हैं जिनकी हेल्प से आप मॉनिटर पे डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे मॉनिटर पे माउस के थ्रू जो कर्सर होता है, ठीक है, पॉइंटिंग के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं. स्क्रीन पे कुछ भी आपको पॉइंट करना है या आपको कुछ भी सिलेक्ट करना है तो यू कैन यूज़ दोज कीज़. लाइक एरो कीज़. एरो कीज़ आर left, right, up and down. These are the arrow keys. Home and end, page up and down. These are all present in the screen navigation or cursor movement keys.
and all those keys have different specific functions. Modifier keys. Now what are the modifier keys? Shift, Control and Alternate are the modifier keys. These keys have different functions. Like if you want to perform any function, जैसे अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो आप पहले कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और उसी के साथ आप एस को प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल प्लस एस दोनों को एक साथ आपको प्रेस करना है तो वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। इसी तरह शिफ्ट और अल्टरनेट के भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। डिलीट की से आप कोई भी कैरेक्टर डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट की के थ्रू आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। एस्केप की के थ्रू आप प्रोग्राम टू प्रोग्राम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं या उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं हर प्रोग्राम के लिहाज से। प्रिंट स्क्रीन की से का ये फंक्शन होता है कि वो आपके मॉनिटर पे जो भी स्क्रीन उस वक्त आ रही है उसको कैप्चर कर सकता है। जैसे कैमरा में आप पिक्चर क्लिक करते हैं ना, उसी तरह आप कंप्यूटर पे अगर आपको कोई इमेज कैप्चर करनी है तो यू कैन यूज़ प्रिंट स्क्रीन की। सो दिस वाज द keyboard. Now move towards our next input device, which is mouse. Let's study about mouse. The mouse is also a primary input device. It is also known as pointing device. माउस को प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहा जाता है और पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस के थ्रू आप कंप्यूटर की स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इफ़ यू वांट टू ओपन एनी आइकन और एनी डॉक्यूमेंट, यू कैन क्लिक दैट डॉक्यूमेंट और यू कैन ओपन दैट डॉक्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ माउस। माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। जब भी आप किसी मॉनिटर पे देखते हैं तो वहाँ पे आपको एक एरो शो हो रहा होता है छोटा सा, ठीक है, दैट इज़ द पॉइंटर ऑफ माउस। आप जिस डायरेक्शन में माउस को मूव करेंगे वो कर्सर भी उसी डायरेक्शन में मूव होगा। A mouse consists of a metal or plastic housing or casing. माउस मेटल और प्लास्टिक के होते हैं। उसके बेस पे एक बॉल होता है जो कि रोल होता है। आप जैसे जैसे उसको मूव करेंगे वो बॉल उसी तरह रोल होता रहेगा। And with the help of that ball or that movement, you can move your cursor on the screen of your monitor. आप जहाँ जहाँ उस माउस को मूव करेंगे वो एरो भी वहीं मूव होगा। एंड आप कोई भी आइकन या कोई भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी सेटिंग आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ माउस। इट हैज़ 2 buttons on the top. Number 1 is the left one is used most frequently. जो लेफ़्ट पर जो बटन होता है वो ज़्यादा यूज़ होता है और जो राइट पर बटन होता है उसके भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। माउस जो है वो वायर के साथ भी आते हैं और अब वायरलेस माउस भी यूज़ होते हैं। सो दिस वाज द सेकंड इनपुट डिवाइस। नाउ मूव टुवर्ड्स टू नेक्स्ट इनपुट डिवाइस विच इज़ ट्रैक बॉल। Now what is a trackball? A trackball is a pointing device that looks like upside down mouse. Trackball बिल्कुल माउस की तरह दिखता है बट उसका डिफरेंट फंक्शन है। जैसे वो भी पोइंटिंग डिवाइस ही है, ठीक है, बट it is slightly different from mouse. The difference between mouse and trackball is कि माउस को आपको मूव करना पड़ता है अपने हाथ से, बट ट्रैकबॉल इज़ स्टेशनरी, इट स्टेज एट वन प्लेस। ट्रैकबॉल एक ही जगह पे प्लेस होता है एंड उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उस पर भी एक बॉल अटैच्ड होता है एंड इट हैज़ 2 to 3 buttons नेक्स्ट टू द बॉल। उस बॉल के आसपास कुछ बटन्स होते हैं जिनके थ्रू आप कंप्यूटर की स्क्रीन को उसी तरह पॉइंटिंग डिवाइस की तरह कंट्रोल कर सकते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो एरो होता है उसे आप जहाँ चाहें उसे मूव कर सकते हैं। A trackball can be placed on any type of surface. आप उसको कहीं भी प्लेस कर सकते हो। Trackballs are popular among heavy computer users and some people say that
ट्रैक बॉल इज़ मोर कन्वीनियंट टू यूज़ दैन अ माउस, के ट्रैक बॉल माउस से ज़्यादा ईजी होता है यूज़ करने में. So that was a trackball. On page number 42, there is an image given in which trackballs have been shown. आप उसको देखिए, उस पिक्चर को, आपको समझ में आएगा कि उसकी फिज़िकल शेप क्या होती है. Okay, now moving towards the scanner. So scanner is an input device that reads images or text and converts the data into digital signals which can be directly fed and stored in computer. स्कैनर्स आपके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर्स को स्कैन करता है और उसके थ्रू जो भी पेपर या जो भी पेज आपने स्कैन किया होगा वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा. जैसे कि इफ़ यू वांट टू स्कैन अ डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपकी मार्कशीट है, आप चाहते हैं कि वो आपके कंप्यूटर में आ जाए, तो आप स्कैनर के थ्रू उसको स्कैन करेंगे और कंप्यूटर उस स्कैनर पे स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को अपने मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाएगा. सो स्कैनर्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइस है और इसके डिफरेंट टाइप्स हैं. सम यूजुअली कम अप विद सॉफ्टवेयर. स्कैनर्स जो है वो कुछ सॉफ्टवेयर्स के साथ भी आते हैं जिसमें एडोबी फ़ोटोशॉप होता है, जिससे आप उस इमेज को रीसाइज़ कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं. ज़्यादातर स्कैनर्स बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हैं एप्सन, ह्यूलेट पैकर्ड, माइक्रोटेक एंड रिलायंस. सो स्कैनर्स हैव 3 टाइप्स: handheld scanner, flatbed scanner and sheet fed. Number 1 is handheld scanner. handheld scanner वो स्कैनर होता है जो कि आपके हाथ में easily आ जाता है and it is very small in size. handheld scanners are very less expensive, वो ज़्यादा expensive नहीं होते, but it requires a steady hand to get a clear image. और जब आप किसी image को scan कर रहे हैं तो आपका hand जो है वो एक जगह पे steady होना चाहिए, मतलब pause होना चाहिए ताकि वो picture अच्छे से scan हो सके. Number 2 is flatbed scanner. फ्लैटबेड स्कैनर इज़ लाइक अ ब्रीफ केस को जैसे आप खोलते हैं और बंद करते हैं, फ्लैटबेड स्कैनर उसी तरह होता है. एज यू कैन सी इन ऑन पेज नंबर 42, handheld scanner and flatbed scanners are shown in the picture. Just see them, then you will get idea of their shape. फ्लैटबेड स्कैनर एक ब्रीफ केस की तरह खुलता और बंद होता है और आप जब उसके अंदर आप इमेज रख के जब उसको बंद करते हैं तो वो उस पिक्चर को या डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेता है. शीट फेड स्कैनर. नाउ व्हाट इज़ अ शीट फेड स्कैनर? शीट फेड स्कैनर में आप एक पेपर को स्कैन कर सकते हैं बट थिक बुक्स और मैगज़ीन्स को स्कैन नहीं कर सकते. वो सिर्फ एक पेपर को उसमें पेपर खुद मूव होता है, ठीक है. फ्लैटबेड स्कैनर में स्कैनर मूव होता था, ठीक है, पेपर एक ही जगह पे स्टिल रहता है एंड स्कैनर मूव होता है. बट इन शीट फेड स्कैनर पेपर मूव होता है. शीट फेड स्कैनर में स्कैनर मूव नहीं होता, पेपर को वो मूव करता है और फिर उसको स्कैन करता है, और ये सिर्फ सिंगल शीट ऑफ पेपर के लिए यूज़ किया जाता है. So this was the scanner and its types. Now moving towards our next input device, which is joystick. What is a joystick? Joystick is a handheld stick with like the joystick in an airplane, which is used as a pointing device. Joysticks are used mostly for computer or video games. Joystick भी एक handheld device है जो कि एक you can say एक होल्डर की तरह होता है जिसको आप अपने हाथ से पकड़ के उसको मूव कर सकते हैं और उससे पॉइंटिंग कर सकते हैं. बट जॉयस्टिक ज़्यादा कंप्यूटर के लिए यूज़ नहीं होती है, वो ज़्यादातर गेम्स के लिए यूज़ की जाती है. एज यू कैन सी ऑन पेज नंबर 44 द इमेज ऑफ जॉयस्टिक हैज़ बीन गिवन, जिसमें आप देख सकते हैं कि वीडियो गेम रिमोट है और एक प्रॉपर हैंडल जॉयस्टिक है. सो इसकी हेल्प से आप शूटिंग, जंपिंग कर सकते हैं, क्योंकि
इसके बटन्स को ट्रिगर्स कहा जाता है और ये ज़्यादातर वीडियो गेम्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसको आप कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं पॉइंटिंग के लिए, बट इससे ज़्यादा पॉइंटिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता। Okay, so the next input device is light pen. What is a light pen? A light pen is a pointing input device that contains a photo detector or light source and that allows interaction with a computer through a specially designed display screen. अगर लाइट पेन को मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो आप आजकल देख रहे होंगे जो फ़ोन्स आते हैं बड़े बड़े सैमसंग के और जो डिफरेंट फ़ोन्स आते हैं उसमें एक पेन दिया जाता है साथ में, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पेन यू कैन पॉइंट एनीथिंग ऑन योर मोबाइल फ़ोन। उस पेन के थ्रू आप कंप्यूटर में आप अपने फ़ोन में कुछ भी पॉइंट कर सकते हो, राइट? उसी को लाइट पेन कहा जाता है और वो लाइट पेन हम कंप्यूटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उससे भी हम कंप्यूटर पे कुछ भी पॉइंट कर सकते हैं उस पेन के थ्रू, उसको डायरेक्टली स्क्रीन पे टच करके। On page number 45, the next input device is microphone. Now, what is a microphone? You can see that on the image which is given on page number 45. Microphone is a type of mics, जो कि mics होते हैं जिस पे हम announcement करते हैं और जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं डिफरेंट फंक्शंस में। वो उसी तरह एक छोटा सा माइक्रोफोन होता है जिसके थ्रू आप अपनी वॉइस या स्पीच रिकॉर्ड कर सकते हैं इन द कंप्यूटर, एंड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन एंड स्पीकर भी माइक्रोफोन में ही आता है। आप स्पीकर और माइक्रोफोन को एक ही कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं, and with the help of that microphone you can make telephone calls from your computer। आप उस माइक्रोफोन के थ्रू आप स्काइप पे या आप किसी भी एप्लीकेशन के या सॉफ्टवेयर के थ्रू आप किसी को भी कॉल्स कर सकते हैं और बात कर सकते हैं और वो डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। वन मोर थिंग टू से कि इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती हैं। ओके, तो माइक्रोफोन भी जब कनेक्ट होता है तो यू कैन कॉल और you can record anything with the help of that mic। The next and the last input device is digital camera. Digital camera. All of you are familiar with this word, camera. All of you know that what is the function of a digital camera. A digital camera is another handheld portable input device that take pictures as input. Okay, so you can connect the digital camera to the computer। आप digital camera को भी computer से connect कर सकते हैं, that's why वो input device है। Okay, and वो क्यों input device है? कैमरा बहुत easily आपके वो handheld device है, वो easily आपके हाथ में आ जाता है। You can click pictures, आप उसमें उसकी मेमोरी के हिसाब से आप जितनी पिक्चर्स क्लिक करना चाहें आप कर सकते हैं। उसमें कोई मैग्नेटिक टेप या रील की ज़रूरत नहीं होती है। और आप जब डिजिटल कैमरा को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो वो सारी पिक्चर्स आप कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि आप कंप्यूटर में कुछ ऐड कर रहे हैं ना, कुछ एंटर कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर एंटरिंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस, तो उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस कहेंगे। These images can be edited, printed और copied in a document। और वो images जो कंप्यूटर में मूव हो चुकी हैं उनको आप edit कर सकते हैं, print कर सकते हैं and copy भी कर सकते हैं। So the digital camera is an input device। Okay, so the most common used input devices are keyboard, mouse, trackball, scanner, joystick, light pen, microphone and digital camera। So here the topic of input devices has been ended and our lesson number 4 part A also। यहाँ पे हमारा lesson number 4 part A end हो रहा है। We will continue this chapter 3 in lesson number 4 part B। I hope that you all understood the topic and read this lesson thoroughly। जहाँ तक हमने अभी explanation
देखी है, आप वहाँ तक उसको अच्छे से रीड कीजिएगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड these devices and search about them on your computers. इनके बारे में सर्च करें और देखें. So complete your work on time. Please do your work in neat and clean writing. Take care of yourselves. Allah Hafiz.